Welcome to another class. So in today's class we will continue with exercise 8.1. In previous class we had done till question number 4. Today we will start with question number 5. So question number 5 goes like, given secant theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. So what are we given with? We are given with secant and we have to take out all the other trigonometric ratios. So it is an easy question. Let's start. So we are given with secant theta 13 by 12. So secant is h upon b, which is 13 by 12. So our h is 13 and b is 12. So diagram will be like, this is our right angle triangle, 90 degree here, and triangle can be A, B, C. Our theta will be here, theta. Our perpendicular will be here, which is not given to us. We have to take it out. And base is 12 centimeter and hypotenuse is 13 centimeter. So using Pythagoras theorem, we will take out p square. So h square plus p square plus b square is Pythagoras theorem. H square is 13 square. P square is 12 square. No, b square is 12 square. And we are left with p square. So 169 is equal to 144 plus p square. 169 minus 144 is equal to p square. 25 under root is equal to p, which is equal to 5 centimeter. So now we have h13, b12 and p5. So let's take out the trigonometric ratios. First is sine theta, which is p upon h. P is 5 and h is 13. Then we have cos theta. Cos is b upon h. So b is 12 and h is 13. Then we have tan theta. Tan theta is p upon b. P is 5 and b is 12. Then we have cosecant theta. Cosecant theta is h upon e, which is 13 by 5. Then we have secant theta, which is given to us. So we need not take it out. It is 13 by 12. Then we have cot theta. Cot theta is b upon p, which is 12 by 5. So this is our answer. So अब हम करेंगे question number 6. Question number 6 states, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. So let's start the question. So हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स है और कॉस ए है कॉस बी के इक्वल. तो अब जब कॉस दिया हुआ है तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल. ये है हमारे पास एंगल ए बी और ये सी, और हमारा सी बनेगा एंगल सी है हमारा 90 डिग्री के इक्वल. ठीक है, तब राइट एंगल बन गया ये. अब हमारे को क्या बोला हुआ है इसमें बोला है हमें कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. तो मतलब कि कॉस ए के लिए एंगल यहाँ पे होगा. तो हमारे परपेंडिकुलर क्या है ये, और हमारा बेस है ये. इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B1, और ये होगी हमारी, नहीं ये हमारी हाइपोटेन्यूज है. ये हमारी हाइपोटेन्यूज की लॉन्गेस्ट साइड है और ये होगा बेस B1. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, कॉस ए होगा B अपॉन H. ठीक है, तो B क्या है हमारे पास, B है AC और H है हमारे पास AB. फिर है हमारे पास cos B. cos B में एंगल हमारे पास यहाँ होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो ये होगा P2 और ये होगा हमारे पास बेस B2 और ये होगा हाइपोटेन्यूज सेम रहती है. फिर भी हम इसको H2 लिख लेते हैं. तो क्या है हमारे पास B अपॉन H, B2 अपॉन H2. यहाँ पे हम B1 अपॉन H1 कर देते हैं. तो हमारे पास B2 क्या है, BC, और H2 क्या है हमारे पास, AB. ठीक है, तो क्या दिया हमारे पास, cos A इज इक्वल टू cos B. तो cos A हमारे पास AC अपॉन AB और cos B हमारे पास BC अपॉन AB. इसमें AB और AB कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास क्या आया, AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि व्हेन साइड्स आर सेम देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. This means that if AC
is equal to BC, then angle A is equal to angle B. Hence proved. This is our answer. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 states if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. और सेकंड पार्ट है cos square theta. तो इसमें बस cot दिया हुआ है, इसमें हमारे को sin और cos की वैल्यू निकालनी है पहले और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. इसमें दिया हमारे पास cot theta is equal to 7/8. तो cot क्या होता है? वैसे हमारे पास cot theta होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है 7/8. मतलब बेस हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर 8 है. तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास फिगर राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ले लेते हैं ABC. ये हो गया हमारे पास थीटा. तो हमारे पास परपेंडिकुलर आएगी 8 और हमारे पास बेस होगा 7. ठीक है. इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो हम पाइथागोरस निकालेंगे जो है h² इज इक्वल टू p² प्लस b². सो p² क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस b² है 7 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो गया 64 प्लस 49. 64 प्लस 49 होता है हमारे पास 113. ये h² लिख लो यहाँ पे. तो h क्या होगा हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 113. ठीक है. तो हमारे पास h आ गया. अब हम निकालनी है इससे हमें साइन और कॉस की वैल्यू. तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास? साइन होता है हमारे पास p अपॉन h. परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, h हमारे पास अंडर रूट ऑफ 113. कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? कॉस होता है हमारे पास b अपॉन h. तो b हमारे पास 7 और h हमारे पास अंडर रूट ऑफ 113. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ भी हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा है. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a² माइनस b². तो a² क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर माइनस b² क्या है हमारे पास? साइन का स्क्वायर. ठीक है. अपॉन नीचे भी यही है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 माइनस साइन है हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये होगा हमारे पास 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113. एलसीएम लेंगे हम इसका. 113 आएगा इसका एलसीएम. 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे. सो 113 माइनस 64 होता है हमारे पास 49 और 113 माइनस 49 होता है हमारे पास 64. तो ये आ गया हमारे पहले पार्ट का आंसर. ठीक है. अब सेकंड पार्ट हम यहाँ कर देते हैं. सेकंड पार्ट है हमारे पास सिंपल है. कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमको इसमें. सो कॉट हमारे पास पहले से दिया हुआ है 7/9. इसका होल स्क्वायर करना है. 7/8 का होल स्क्वायर करना है और हमारे पास यहाँ आ गया 49/64. ये आ गया हमारे पास आंसर. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 states if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A. तो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है. हमारे पास यहाँ पे भी कॉट दिया हुआ है. इसमें हमारे को पहले tan की वैल्यू निकालनी है और cos और sin की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है. तो ये भी इजी क्वेश्चन है. चलो लेट्स स्टार्ट. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4, check 1 minus tan square A plus अपॉन 1 प्लस tan square A is equal to cos square A minus sin square A. तो क्या दिया हमारे पास? कॉट दिया हुआ है. तो cot A इज इक्वल टू 4/3. ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा इससे. तो कॉट होता क्या है हमारे पास? होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. तो बेस अपॉन बेस हमारे पास 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 होगी. तो हमें क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है. तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा. ABC यहाँ पे थीटा होगा. ये 90 डिग्री होगी हमारे पास. ये परपेंडिकुलर होगी हमारी. परपेंडिकुलर क्या है हमारी 3 और बेस क्या हमारा 4. हाइपोटेन्यूज में निकालनी है. ठीक है. तो हमारे पास पाइथागोरस लगेगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b². p क्या है हमारे पास? p है हमारे पास 3 का स्क्वायर और b है हमारे पास 4 का स्क्वायर. जो कि 9 प्लस 16
हो गया 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच क्या होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे 5 आ गई है। अब हमें निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, tan a की वैल्यू। ठीक है, तो tan a क्या होगा हमारे पास, वैसे tan हमारा कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ पे p अपॉन b जो है हमारे पास 3/4, और निकालनी हमें cos a। cos a क्या होता है हमारे पास, cos a होता है b अपॉन h, तो बेस क्या है हमारे पास 4 और h क्या है हमारे पास 5, और हमारे पास है परपेंडिकुलर, और साइन निकालिए हमें, साइन ए की वैल्यू निकालनी है जो होती है p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और h है हमारे पास 5। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, 1 माइनस tan स्क्वायर a बोला है, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको आएगा 1 माइनस 3 3 9 अपॉन 16, और यहाँ पे भी ऐसे 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 होता है हमारे पास 7, और ये हो गया 25, तो 7/25 आ गया हमारा इसका आंसर। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a क्या है हमारे पास, cos a क्या है हमारे पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या है हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे हम 4 4 जा 16 हो जाएगा अपॉन 25, और यहाँ माइनस 9 अपॉन 25 एलसीएम आएगा हमारे पास, और 16 माइनस 9 जो कि होगा 7/25। तो ये हो गया, प्रूव हो गया ये कि ये और ये इक्वल है। सो ये है हमारे पास आंसर।